Students, in this video we are going to cover our next chapter, that is bank reconciliation statement. So beginning means you can say introduction about this chapter I already told you, or I already give you. So in this video we are going to discuss that what are the topics we have in this chapter. So we have basically 4 topics that we need to study this year. इस ईयर हमें केवल 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं. कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमारे पास? सो द फर्स्ट वन इज व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन. व्हाट इज गिवन टू यू? बैलेंस एज पर कैश बुक. So if balance as per cash book is given, or debit balance or favorable balance, both have same meaning, that is positive balance. तीनों का क्या मतलब है कि हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है. सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक और जस्ट बैलेंस एज पर पासबुक इज मेंशन. इट ऑल्सो हैज़ द सेम मीनिंग दैट वी हैव अ पॉजिटिव बैलेंस. इसका भी यही मतलब है कि हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है. थर्ड पॉइंट, credit balance as per cash book. What is mentioned? Credit balance as per cash book. So have a look that over first point, that debit balance as per cash book has positive meaning, while credit balance as per cash book would have negative means. So that's why I have also written unfavorable. Next point, debit balance as per passbook. Debit balance as per passbook. So as you can see that credit balance as per passbook means positive, so debit balance as per passbook means negative, which can be also called as unfavorable balance. So that's why here in short form I have written that debit as per cash book means positive, plus credit as per cash book means negative balance, minus debit as per passbook means minus, credit as per passbook means plus. Just opposite of each other, means cash book and passbooks are opposite to each other. So next thing is the format now. So here we are going to discuss about the format. It is not the entire format, because the thing is you have to understand the concept. In this format I have written 5 to 6 points which are generally used, but apart from this you have to just understand the concept carefully, ki what the concept says. So the topic which we have selected out of the 4 is balance as per cash book. हमने balance as per cash book, which can be also called as debit balance और favorable balance, जिसको हम debit balance या फिर फेवरेबल बैलेंस भी कह सकते हैं. सो इस बैलेंस के अकॉर्डिंग हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. So if balance as per cash book is given, it means it is one of the positive balance. So you have to write the amount at the positive side. And one thing also, BRS, bank reconciliation statement, is prepared at the end of the year. So what you have to write? Bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement as at whatever be the closing date of your month that is given to you in question, that you have to mention over here. So the first point is balance as per cash book, that is debit balance or favorable, so that's why it will come on to the positive side. Second thing is check issued but not presented for payment. Check issued but not presented for payment. So now we are going to discuss about this second point, and you can say one of the important point also. तो क्या है हमारा सेकेंड पॉइंट? चलिए पढ़ते हैं. द पॉइंट विच आई सेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए पॉजिटिव साइड में आएगा, प्लस साइड में आएगा, ये आप देख चुके हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दैट वाई इट विल कम ऑन टू द पॉजिटिव साइड एंड इन विच कंडीशन इट विल कम ऑन टू द डेबिट क्रेडिट नेगेटिव साइड. सो चेक issued but not presented for payment. This is your point. Check issued but not presented for payment. So under this point you have to find out that what is mentioned, or you can say what is the date on which transaction or check has been issued. So suppose that check has been issued on the day that is 4th of December. Suppose चेक कब इशू किया गया है? 4 दिसंबर के दिन. और हम कब बनाते हैं PRS? व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू एट द एंड ऑफ द मंथ. सो इट मीन्स वी विल प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31st ऑफ दिस मंथ. सो देखिए, व्हेन यू मीन्स कंपनी, व्हेन कंपनी विल इशू अ चेक, when firm will issue a check, not company, firm, when firm will issue a check, what it will do, वो क्या करेगी फर्म? तो फर्म विल रिड्यूस इट्स कैश बुक, फर्म विल रिड्यूस बैलेंस
फ्रॉम द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक। फर्म अपने बैंक कॉलम कैश बुक के बैंक कॉलम से पैसा माइनस कर देगी। किस डेट पे? 4 दिसंबर पे। बिकॉज फर्म ने आज अमाउंट पे किया है, फर्म ने आज चेक दिया है, सो फर्म विल डिडक्ट दिस बैलेंस ऑन 4 दिसंबर फ्रॉम देयर कैश बुक। कहाँ से? हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? वी हैव द राइट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन कैश बुक ओनली वाइल इन पासबुक। जबकि पासबुक में बैंकर्स हैव द राइट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स। वहाँ पे बैंकर्स के पास राइट होता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। सो सपोज कैश बुक को क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे 4 दिसंबर को। क्यों? बिकॉज चेक हमने इशू किया है 4 दिसंबर पे। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इट मीन्स जिसको भी चेक दिया था, जिस भी पर्सन को चेक दिया था, वो बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो बताइए, विल योर एक्चुअल बैलेंस फ्रॉम बैंक विल रिड्यूस और इंक्रीज? क्या होगा? तो देर विल बी नो इम्पैक्ट। दोनों में से कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज आपने जिसको भी चेक दिया है वो पर्सन बैंक में पेमेंट लेने पहुंचा ही नहीं है। सो इन दिस कंडीशन योर पासबुक विल हैव नो चेंज। जबकि गलती से हमने कैश बुक को क्या कर दिया था? माइनस। एंड टू मैच them and to match both cash book and passbook, what we have to do? We have to increase this balance of cash book। हमें क्या करना होगा? अपनी कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज करना होगा ताकि ये पासबुक के इक्वल चली जाए। या फिर अब आप में से कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि इंस्टेड ऑफ दिस एडिशन इन कैश बुक वी कैन रिड्यूस द बैलेंस फ्रॉम पासबुक ऑल्सो, क्योंकि आज नहीं तो कल पैसा डिडक्ट होना ही है। सो यू कैन डू दिस थिंग ऑल्सो, but you will do this only when question says that balance as per passbook is given। when क्वेश्चन आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ हो? पासबुक से स्टार्ट हुआ। अगर पासबुक का बैलेंस आपको पता है, देन यू हैव टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन द पासबुक। तब आपको चेंजेस जो भी हैं वो कहाँ करने होंगे? पासबुक में। बट इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम कैश बुक, यदि क्वेश्चन कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है, तो यू हैव टू मेक ऑल द चेंजेस इन कैश बुक ओनली। यू कांट मेक एनी चेंज। जो स्टैंडर्ड चेंज होगा वो तो होगा, बट आप अलग से कोई चेंज ये एडजस्ट करने के लिए, दोनों को मैच करने के लिए जो चेंज करेंगे वो केवल और केवल कैश बुक के अंदर ही करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, सो दैट्स वाई व्हाट वी हैव टू डू, कैश बुक को हमने 4 दिसंबर को ही माइनस कर दिया था, बट एक्चुअल में वो पर्सन बैंक में पैसा लेने प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो इन दिस कंडीशन आर पासबुक विल हैव नो इम्पैक्ट। हमारे बैंक में बैंक बैलेंस में कोई चेंज आएगा ही नहीं। और जब बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं आएगा और हम 31 दिसंबर को दोनों को मैच करेंगे, तो क्या दिखेगा? कैश बुक कम है एज कम्पेयर टू द बैलेंस ऑफ पासबुक। तो दोनों को मैच करने के लिए कैश बुक जितना भी कम था उतना हम क्या कर देंगे? प्लस। सो दैट्स वाई in this format we have seen that check issue but not presented for payment has been mentioned at the positive column or plus column, or I hope this point is clear. Moving toward the next point, that is check deposited or paid into bank but not collected, credited, cleared, realized anything। कि चेक आपने जमा किया बट किसी भी कारण से वो कलेक्ट नहीं हो पाया, क्रेडिट नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया। चलिए करते हैं ये पॉइंट। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड और क्लियर्ड, कि चेक डिपॉजिट किया बैंक में लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया। दिस इज़ योर टॉपिक, सॉरी पॉइंट। सो what you will do in this case। so चलिए हम assume करते हैं कि where we all are recording the transactions, we are recording transaction into cash book, and where bankers will record, so bankers are doing record or bankers are making records in passbook। तो देखिए कैश बुक के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? हमने मीन्स कंपनी ने, फर्म ने चेक डिपॉजिट किया है बैंक में। सो व्हाट कंपनी विल डू, व्हाट फर्म विल डू इन इट्स कैश बुक? तो फर्म अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में, इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, फर्म विल ऐड द अमाउंट, कि मेरे अकाउंट में तो आज इतना पैसा आ गया होगा। बट व्हाट इज़ द रियलिटी? चेक हैज़ बीन नॉट क्लियर, चेक हैज़ नॉट बीन क्लियर, सॉरी, जो चेक है वो हमारा क्लियर ही नहीं हुआ। लिखा ना, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, क्रेडिटेड, कलेक्टेड, रियलाइज, सारे शब्दों का अर्थ एक ही है कि पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया। सो इन दिस कंडीशन योर बैंक इज़ नॉट एडेड, मतलब बैंक में कोई चेंज हुआ ही नहीं, ना तो इंक्रीज हुआ है, ना तो प्लस हुआ है, ना ही कुछ माइनस हुआ है। तो बैंक हैज़ नो इम्पैक्ट। जबकि आपने क्या कर दिया? यू एडेड योर कैश बुक,
और फिर आप लास्ट डेट पे दोनों को कंपेयर करेंगे, देन व्हाट यू विल कम टू नो दैट योर कैश बुक बैलेंस ऑफ योर कैश बुक इज मोर देन द बैलेंस ऑफ योर पासबुक. एंड व्हाट आई टोल्ड यू, इफ यू हैव स्टार्टेड द क्वेश्चन एज पर कैश बुक, यदि आपने क्वेश्चन कैश बुक के अकॉर्डिंग स्टार्ट किया है तो दोनों को इक्वल करने के लिए आपको कैश बुक में से बैलेंस क्या करना पड़ेगा, माइनस. बट इफ़ यू हैव स्टार्टेड क्वेश्चन फ्रॉम पासबुक, देन आप देखिए बैंक में प्लस हो रहा था तो फिर आपको भी प्लस करना पड़ता, मीन्स दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं. सो व्हाट फाइनली वी नीड टू डू, वी हैव टू डिडक्ट द बैलेंस फ्रॉम कैश बुक बिकॉज वी आर फॉलोइंग द फॉर्मेट एज पर कैश बुक. तो कैश बुक के हिसाब से हमें इस ट्रांजेक्शन को कहाँ शो करना होगा, एट नेगेटिव साइड, एट माइनस साइड. Check deposited or paid, you can say write anything, into bank but not collected, credited, cleared, realized. I hope it is also clear. Next point is bank charges. Next point क्या है आपका, बैंक चार्जेस. बैंक चार्जेस मीन्स बैंक ने कुछ चार्ज डिडक्ट किए हैं, बैंक ने किसी काम के कारण या किसी रीज़न से पैसा डिडक्ट किया है. So what I told you in the beginning of this chapter कि you have to make some assumption that you are living in such a world where there is no cell phone, जहाँ पे immediate information मिल पाना सच possible नहीं है. So in that condition, if bank will deduct the charges from your bank account, you will not come to know in स्टिल यू विल नॉट रीच टू द बैंक. जब तक आप बैंक नहीं जाएंगे आपको इस बारे में नहीं पता चलेगा कि बैंक ने आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट किया भी है. तो सपोज लेट्स सपोज कैश बुक, पासबुक, दीज आर द टू बुक्स वी आर ट्राइंग टू रिकनसाइल देम. सो बैंक हु विल डिडक्ट द चार्ज, बैंक चार्जेस कौन डिडक्ट करेगा, सो दे विल बी डिडक्टेड बाय द बैंकर्स ओनली. इनको कौन डिडक्ट करेगा, बैंकर्स. तो इस कंडीशन में बैंक वाले क्या करेंगे, पासबुक से बैलेंस कम कर देंगे. बट क्या हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, सो द आंसर इज नो, वी डिडंट गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. और हमें पता ही नहीं कि हमारे अकाउंट से कोई पैसा डिडक्ट भी हुआ है. एंड एट द लास्ट डेट व्हेन वी विल मैच बोथ द थिंग्स, व्हेन वी विल टैली, तो हमें क्या पता चलेगा कि कैश बुक में तो बैलेंस ज़्यादा है, पासबुक में कम है. सो टू मेक देम इक्वल वी हैव टू डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम कैश बुक बिकॉज वी हैव स्टार्टेड द क्वेश्चन एज पर कैश बुक. यदि पासबुक से कर रहे होते तो यही ट्रांजेक्शन प्लस में कन्वर्ट हो जाती. तो बैंक चार्जेस क्या करना, आपको कैश बुक के अकॉर्डिंग माइनस करना है. तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट. तो आपने यहाँ देखा भी होगा फॉर्मेट में बैंक चार्जेस विच इज मेंशन एट द फोर्थ पॉइंट. बैंक चार्जेस ये हमने कहाँ शो किया है, नेगेटिव साइड. इट मीन्स सो द नेक्स्ट पॉइंट इज बैंक अलाउड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बोथ हैव सेम मीनिंग. कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया है या इंटरेस्ट बैंक के द्वारा दिया गया है. सो दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंट इन विच व्हाट इज हैपनिंग कि बैंक इज गिविंग अस, जैसा कि होता है वी ऑल नो दैट ऑन आवर डिपॉजिट, जो भी हमने बैंक में डिपॉजिट किया है बैंक उस पर हम सारे लोगों को कुछ ना कुछ अमाउंट देता है एज एन इंटरेस्ट के तौर पे. तो बैंक यदि हमें इंटरेस्ट देता है तो इट विल कॉज एन इंक्रीज इन आवर पासबुक बैलेंस. तो इससे होता क्या, हमारे बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है. क्या होता है, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता है. चलिए जस्ट अ मिनट. बैंक अलाउड इंटरेस्ट, दिस इज द पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो there is cash book one, another one is passbook. So if bank will give the allow the discount, यदि बैंक हमें interest देगा, not discount sorry, if bank will allow the interest, then कहाँ पे पैसा आएगा, it will directly came into our bank account and we don't have such information because बताया हुआ assumption कि we are living in such a world where there is no cell phone. तो जब तक हम बैंक नहीं जाएंगे we will not come to know कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट भी हुआ है, तो सॉरी ऐड हुआ है. सो बैंक इंटरेस्ट देगा तो डायरेक्टली इट विल कॉज एन इंक्रीज इन टू आवर बैंक बैलेंस और हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. एट लास्ट व्हेन वी विल टैली बोथ द बुक्स then we will come to know that our cash book balance is less than the passbook balance, and to make them equal we have to add the cash book also. हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को ऐड करना पड़ेगा. So that's why interest allowed by bank or bank allowed interest is mentioned at the positive side. I hope it is clear. Next, check received or check deposited directly by a customer. Both you can write any of the thing. तो पॉइंट क्या है नेक्स्ट, चेक
डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय अ कस्टमर, कि एक चेक डिपॉजिट कर दिया है डायरेक्टली एक कस्टमर के द्वारा. सो दिस इज योर पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय अ कस्टमर. सो द पॉइंट इज चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय अ कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट. कई बार क्या होता है, कुछ कस्टमर ऐसे इतने अच्छे मिल जाते हैं कि मीन्स विदाउट आर डिमांड, मीन्स बिना हमारे डिमांड किए या बिना उनसे मांगे वो अपने आप जितना भी अमाउंट उनको पे करना होता है दे पेड. सो इफ़ दे आर पेइंग, सपोज एनी ऑफ द कस्टमर और डेटर और एनी वन पेड द अमाउंट डायरेक्टली इनटू योर बैंक अकाउंट, आप मस्त सोए हुए थे बिल्कुल नींद की दुनिया में, और आपको पता भी नहीं चला कब कोई कस्टमर आके आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा डिपॉजिट करके चला गया. सो इस कंडीशन में होगा क्या, आपको तो कोई इन्फॉर्मेशन मिले नहीं. मीन्स वी हैव, जैसे कि कैश बुक, दैट वी हैव कैश बुक एंड पासबुक बोथ. सो इफ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड द अमाउंट देन इट विल डायरेक्टली केम इनटू आवर बैंक अकाउंट. तो वो पैसा कहाँ पे आया होगा, डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में. सो द रिजल्ट, एज अ रिजल्ट बैंक बैलेंस विल इंक्रीज. क्या होगा कि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ट्रांजेक्शन. सो व्हाट विल हैपन एट द टाइम व्हेन वी विल टैली बोथ द बुक्स. अगर हम लास्ट डेट पे मंथ की दोनों ही बुक्स को टैली करेंगे तो क्या होगा, कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. एंड फॉर टू रिमूव दिस डिफरेंस व्हाट यू विल हैव टू डू, यू हैव टू डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम योर कैश बुक, सॉरी डिडक्ट नहीं, ऐड करना पड़ेगा आपको अपनी कैश बुक में, सो दैट द टोटल बिकम्स इक्वल, कि दोनों का टोटल हमारा इक्वल हो जाए. आई होप इट इज़ क्लियर. सो द नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट. सो द पॉइंट इज बैंक मीन्स चेक इशूड एज पर आर इंस्ट्रक्शन, कि बैंक ने इशू किया है कोई चेक एज पर आर इंस्ट्रक्शन. बैंकर्स इशूड अ चेक, कि किसके द्वारा चेक इशू किया है, तो बैंक के द्वारा चेक इशू किया गया है एज पर आर इंस्ट्रक्शन. तो देखिए होता क्या है कि नाउ अ डेज इट इज़ वेरी इजी टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल एंड ऑल, बट once there was a time when you have to make a you have to stand in a long queue. एक लंबी लंबी लाइनों में कतारों में खड़ा होना पड़ता था टू पे द अमाउंट ऑफ दीज काइंड ऑफ बिल्स. सो टू रिमूव दैट प्रॉब्लम, कि वो लाइनों में खड़े होने से बचने के लिए कई बार लोग क्या करते थे, बड़े बड़े लोग, कि दे जस्ट कॉल टू देयर बैंक, कि वो अपने बैंक को कॉल किया करते थे कि यू जस्ट पे दिस बिल ऑफ माइन, कि मेरा ये बिल पे कर दीजिए आप, और जो भी अमाउंट होगा वो डिडक्ट कर लीजिएगा बैंक अकाउंट से. तो इस टाइप की फैसिलिटी कई बार हमें बैंक प्रोवाइड कराता है, इस टाइप की फैसिलिटी कई बार हमें बैंक प्रोवाइड कराता है, बट इन रिटर्न इसके बदले में बैंक क्या करता है, हमसे कुछ चार्जेस डिडक्ट करता है. सो बैंक ने मतलब बैंक ने हमारे कहने पे एक चेक इशू किया है किसी को, तो यहाँ पे एक वर्ड और भी लिख सकते हैं, आपको दिखेगा बुक्स में, एज पर आर एडवाइस. चेक इशूड एज पर आर इंस्ट्रक्शन और एज पर आर एडवाइस, दोनों का मीनिंग सेम ही है. तो चलिए समझते हैं इस पॉइंट को. चेक इशूड एज पर आर इंस्ट्रक्शन, कि चेक इशू किया गया है हमारे कहने पर, हमारे इन द सेंस जो भी फर्म है उनके कहने पर. चेक इशूड एज पर आर इंस्ट्रक्शन, कि हमारे कहने पे चेक इशू किया गया है बैंक ने. सो होगा क्या, लाइक वी हैव कैश बुक एंड पासबुक. तो देखो हमने कहा है तो इसका मीनिंग हमें पता तो है, बैंक से हमारा पैसा डिडक्ट हुआ है, बट कब हुआ है वी कांट से, कि सपोज हमने आज कहा और बैंक, ज़रूरी नहीं है बैंक आज ही अमाउंट पे कर दे, और जो अमाउंट पे करेगा उसके रिटर्न में एक चार्ज भी बैंक डिडक्ट करेगा. इन रिटर्न ऑफ दैट बैंक विल ऑल्सो चार्ज समथिंग. सो उस कंडीशन में बैंक से हमारे कितना अमाउंट फाइनली डिडक्ट हो रहा है, वी विल नॉट कम टू नो अबाउट दैट, हमें उसके बारे में पता नहीं चल पाएगा. सो एट द एंड व्हेन वी विल टैली, तो टू मेक देम इक्वल वी हैव टू डिडक्ट द बैलेंस फ्रॉम कैश बुक ऑल्सो. तो अगर इसीलिए आपने देखा हो तो ये पॉइंट कहाँ लिखा हुआ था, हमारे नेगेटिव साइड में. नेक्स्ट पॉइंट इज चेक इशूड और चेक डिपॉजिटेड. चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिट किया और उसके बाद क्या हो गया, डिसऑनर्ड, बट नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक, बट नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक, कि चेक डिपॉजिट किया गया और उसके बाद वो डिसऑनर भी हो गया और इसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड कहाँ मेंशन नहीं हो पाया कैश बुक में. तो चलिए देखते हैं
we have cash book and passbook both. So if you will deposit the check, अगर आप चेक डिपॉजिट करेंगे देन हम क्या नोट करेंगे कि हमारे कैश बुक में पैसा हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे कि पैसा आ गया, लेकिन वो चेक हो क्या गया, डिसऑनर। डिसऑनर मीन्स चेक का बाउंस हो जाना। डिसऑनर मीन्स चेक का बाउंस हो जाना या जो भी अमाउंट थी वो आपके अकाउंट में ना आ पाना। तो देखिए डिसऑनर डिपॉजिट किया तो हमने ऐड कर ये सोचा कि हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस आ गया होगा, सो दैट्स व्हाई वी एडेड द कैश बुक, बट द चेक इज डिसऑनर्ड एंड इट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑल्सो। चेक डिसऑनर हो गया और उसको कैश बुक में रिकॉर्ड भी नहीं किया गया। सो एट द एंड ऑफ द मंथ व्हेन वी विल टैली बोथ द बुक्स, मंथ के एंड पे जब हम दोनों को टैली करेंगे, दोनों का बैलेंस करेंगे, देन व्हाट वी विल कम टू नो दैट आर कैश बुक इज मोर देन द पासबुक। हमारी कैश बुक पासबुक से ज़्यादा है एंड टू मेक दैम इक्वल वी हैव टू डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम कैश बुक ओनली। दोनों को इक्वल करने के लिए हमें कैश बुक से अमाउंट डिडक्ट करनी पड़ेगी। वी कैन नॉट डू एनी चेंज इन पासबुक, क्योंकि गलती से हमने कैश बुक ऐड की थी, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें फिर वो अपनी जो भी अमाउंट ऐड किया था उसे माइनस करना पड़ेगा, सो दैट बोथ द थिंग्स बिकम इक्वल। सो आई होप ये शायद आप सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इन द सेम वे यू हैव टू अंडरस्टैंड द लाइन कि व्हाट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन में क्या लिखा है क्या नहीं, इस चीज़ को आपको समझना है। देन यू हैव टू ट्राई द पॉइंट। जैसे कि एक आध पॉइंट और बात करें तो चेक और बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, ये बुक में ही लिखा हुआ है आपके, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, कि बैंक चार्जेस था वो बैंक कैश बुक में डबल रिकॉर्ड हो गया। नाउ व्हाट वी विल डू, तो देखिए बैंक चार्जेस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्वाइस की बात बाद में करेंगे। बैंक चार्जेस होता क्या है, सो द चार्ज डिडक्टेड बाय द बैंक। कौन डिडक्ट करता है, बैंक। सो डेफिनेटली इट विल वी हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम द पासबुक। अब देखो पासबुक से डिडक्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि बैंक ने चार्ज किया है तो बैंक बैलेंस हमारा कम होगा, और बैंक कहाँ रिकॉर्ड करता है, पासबुक में, तो पासबुक के बैंक कॉलम से अमाउंट माइनस। लेकिन इस ऐसा नहीं कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में रिकॉर्ड किया है, बट कितनी बार, डबल। मीन्स अगर पासबुक से 100 रुपीज़ डिडक्ट हुए तो कैश बुक से कितना डिडक्ट कर दिया हमने, 200, मतलब 100 दो बार डिडक्ट कर दिए। सो इन दिस केस इफ वी विल टैली बोथ द बुक्स देन व्हाट वी कम टू नो कि कैश बुक बैलेंस ऑफ कैश बुक इज लेस देन द पासबुक। कैश बुक का बैलेंस पासबुक से कम है। सो टू मेक दैम इक्वल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड 100 रुपीज़ इनटू आवर कैश बुक। हमें अपनी कैश बुक में 100 रुपीज़ प्लस करना पड़ेगा। सो इसी तरीके से और भी बहुत से पॉइंट हैं, कास्ट शॉर्ट की कम रिकॉर्ड कर लिया, ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, रीबेट एंड ऑल, ऐसे बहुत से पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। सो जस्ट रीड द लाइन, ट्राई टू लिंक द कंसेप्ट कि क्या कंसेप्ट है, क्या कहाँ से डायरेक्ट होगा कहाँ से नहीं, एंड सॉल्व दैट। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए, जो भी डाउट हो आपका। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।